Hello, viewers. Welcome to the lecture series of environmental chemistry. This is the lecture number 4, and today we are going to discuss about different type of pollution, like water pollution, soil pollution, etc. So let us begin with water pollution. So, as the name suggests, water pollution. What is water pollution? कि जब कुछ ऐसी चीजें जो पानी में नहीं होनी चाहिए या फिर जिनकी क्वांटिटी पानी में बहुत कम होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी जब पानी में ज्यादा हो जाती है, तब जो पॉल्यूशन हो रहा है हमारे पानी में, उस तरह के पॉल्यूशन को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन. ओके, सो वी कैन राइट प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल materials undesirable materials in water which is harmful which is harmful for the human beings and plants. तो इसी को हम क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन. कि पानी में ऐसे मटेरियल्स का होना जो वहां पे नहीं होने चाहिए, और उससे जिसके कारण हमें इंसानों को और प्लांट्स को काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं, उसी को हम कहेंगे वाटर पॉल्यूशन. ओके, सो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर. तो कुछ मतलब परमिसिबल है कि इससे कुछ मेटल्स है जिसकी कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वो क्या है? तो लेट मी क्विकली राइट इट डाउन. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर. तो वो क्या है? कि सबसे पहले तो है हमारे पास Fe, आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, और है फिर कॉपर, फिर है जिंक और फिर है कैडमियम. तो ये मेटल्स है हमारे पास 6. इनकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या है? तो हम लिमिट्स की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन में है सारी की सारी. पार्ट्स पर मिलियन में बता रहा हूं मैं इनकी परमिसिबल कंसंट्रेशन. 0.01 मैग्नीज की है 0.05 पार्ट्स पर मिलियन है ये सब. 0.2, 3.0, जिंक की है 5.0 और कैडमियम की है 0.605. So this is the concentration which is maximum allowed in the drinking water for these metals. Okay. So now let us come back to pollution, water pollution. So what are the major water pollutants which pollutes the water? So major water pollutants कौन कौन से हैं हमारे? So I will list down some of the pollutants, and I also discuss the major source of those pollutants. तो सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इसका सोर्स है हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज. फिर उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट, और इसका सोर्स है हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज. एंड अदर देन दैट, एनिमल excreta waste, decaying animals and plants discharged from food processing factories. So these are all sources of organic waste. Okay. So next we have plant nutrients. तो इसका सोर्स है हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर, जो खेतों वगैरह में यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर. ओके. टॉक्सिक हैवी मेटल्स. तो टॉक्सिक हैवी मेटल्स का हमारे पास सोर्स है इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज एंड chemical factories. Okay. So next is sediments, and इसका source है erosion of soil by agriculture and strip mining. Agriculture and strip mining. Pesticides, as the name suggests, chemical used for killing
insects, fungi, and weed. Chemical used for killing insects, fungi, weed, and next one is radioactive substance. Radioactive substance. So radioactive substance, mining of uranium containing minerals, mining of uranium containing minerals, and also heat, water used for cooling in industries. ठीक है. So these are the some major water pollutants जिसके कारण से water में pollution हो रहा है. और on the left side you have pollutants, and on the right side you have sources. So these are the major water pollutants. Now we are going to discuss about causes of water pollution. What are the things which causes water pollution in detail? So the first we have is pathogens. Pathogens. So pathogen, what are pathogens? These are the bacteria and other organisms that enter water from the domestic sewage and animal excreta. ओके, सो ये वो बैक्टीरियाज है और जो हमारे वाटर में डोमेस्टिक सीवेज और एनिमल एनिमल एक्सक्रीटा के कारण आ जाते हैं. So let us write it down. Pathogens are the bacteria and the organisms and the other organisms that enter water from domestic sewage and animal excreta. Okay. So human जो excreta होता है that contains bacteria such as और इसके कारण से it causes gastrointestinal disease. Gastro. Okay. So this was about pathogens. Now we are moving ahead. We have organic waste. So as we discussed above, domestic sewage, animal excreta, decaying animals, these are all the sources of organic waste. Organic matters organic matter such as leaves, grass, trash, etc. can pollute water. Excessive growth of phytoplankton within water also pollute. Large number of bacteria in water can consume oxygen dissolved in water by decomposing organic matter in water. So अगर if the concentration, तो अगर जब ये बैक्टीरियाज हमारे ज्यादा हो जाते हैं पानी के अंदर, तो वो उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण से वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है. और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ता है. जैसे फिश वगैरह जो हमारी रहती है पानी में, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है. दे गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इटसेल्फ. दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर दैट. तो अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा तो दे वॉन्ट बी able to breathe, and ultimately leading to death. Large number of bacteria in water can consume oxygen dissolved in water, and if the concentration of dissolved oxygen
in water is below 6 ppm parts per million, the growth of fish gets inhibited. ओके, सो अगर पानी के अंदर कुल मिला के हमारा कंक्लूजन ये है ऑर्गेनिक वेस्ट का कि अगर आप पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड कर देते हैं तो जो उसके अंदर जो पानी का अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने के चलते हमारी एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ सकती है, उनमें रहने वाले प्राणियों की मृत्यु हो सकती है। तो नेक्स्ट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, so what is BOD? So this can be defined as the amount of oxygen required by a bacteria for breakdown of organic matter present in certain volume of a sample water is called as BOD. So let us write it down. It is defined as the amount of oxygen required by bacteria for the breakdown of organic matter present in certain volume. So we can say that the amount of BOD is in water is a measure of the amount of organic material in the water. ठीक है, तो BOD को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ BOD इन वाटर। तो द अमाउंट ऑफ BOD इन वाटर इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर, कि अगर हमारे पानी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है ये बता रहा है BOD। सिंपल अगर कहें हम सिंपली तो हमारे पानी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम BOD कहेंगे। और जो हमारा क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर हैज BOD वैल्यू ऑफ लेस देन 5 ppm। ठीक है, जो क्लीन वाटर है उसके अंदर BOD 5 ppm से कम होना चाहिए। और जो हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है हमारा, हाईली polluted water has BOD value greater than equal to 17 ppm। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्लीन वाटर के लिए हमारे पास ppm कितना, BOD कितना है 5 ppm, और हाईली पॉल्यूटेड वाटर के लिए इससे ज्यादा। अब लेट अस नाउ टॉक अबाउट केमिकल पॉल्यूटेंट्स। केमिकल पॉल्यूटेंट्स में फर्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो हमारे फैक्ट्रीज वगैरह में जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं उसके कारण से भी हमारा वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ठीक है, तो जैसे कि कुछ एग्जांपल है लेड, मरकरी, निकल, कोबाल्ट। ये जो केमिकल्स हैं इनका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है हमारे ग्राउंड वाटर पे। केमिकल्स केमिकल्स सच एज लेड, मर्क्यूरी, निकल, कोबाल्ट, these chemicals give a very bad effect to the groundwater and water bodies are polluted due to the chemical reaction
reaction known as leaching. So next is pesticides. So what are pesticides? These are mostly chlorinated hydrocarbons, organosulfates and metallic salts. और इनका थोड़ा सा भी मात्रा पानी के अंदर होना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हर प्रकार के जितने भी हमारे पास पेस्टिसाइड है सब के सब टॉक्सिक इन नेचर होते हैं और दे आर इंजूरियस टू प्लांट एंड एनिमल्स बोथ. तो these are mostly fluorinated hydrocarbons, organophosphates, and metallic salt. They dissolve in water to small extent and pollute it. Now we are going to next thing, chemical pollutants, that is polychlorinated biphenyls. Polychlorinated biphenyl, PCBs. तो ये केमिकल कंपाउंड है जिससे हम ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स इनमें यूज करते हैं. और इनके जब इनके वेपर्स जब एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं, ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और पानी को कंटामिनेट करते हैं. दीज आर द केमिकल कंपाउंड used as fluids in the transformers and capacitors. These are released in atmosphere as vapors and they mix in rainwater and contaminate it. And next is eutrophication, the process in which algae-like organisms reduce dissolved oxygen in water is called eutrophication. Eutrophication, harmful for aquatic life. तो यूटोरिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर एल्गे और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है यूटोरिफिकेशन. तो ये तो हो गए हमारे कॉजेज कि किस किस के कारण हमारा वाटर में पोल्यूशन हो रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बनाए गए हैं कि बताता है कि पानी के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट की, पर्टिकुलर केमिकल की, जो भी हमारी चीजें हैं पानी के अंदर, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए फिट रहेगा, सही रहेगा. जैसे फ्लोराइड, लेड, सल्फेट, नाइट्रेट, तो ये जितने भी मेटल्स एलिमेंट्स हैं इन सब के कितनी क्वांटिटी अलाउड है मैक्सिमम पानी के अंदर जिससे कि आप उसको पी सकें, तो उसका एक वो है हमारा डेटा. सो सबसे पहला है हमारे पास फ्लोराइड.
तो अगर पानी को पीना है तो उसके अंदर फ्लोराइड आयन का टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी होना ड्रिंकिंग वाटर में बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इट कैन कॉज डिजीज लाइक टूथ डिके एक्सेट्रा। और soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 parts per million। ठीक है, मतलब फ्लोराइड का होना आवश्यक है पानी के अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं, हिसाब से, बैलेंस में। तो परमिसिबल कितना है इसका अपने मैक्सिमम, इसकी मात्रा मैक्सिमम होनी चाहिए 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm। ठीक है। और इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज टूथ डिके। ठीक है, तो इसका होना जरूरी है। तो नेक्स्ट इज लेड। जो हमारा पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सोर्सेज यूज किए जाते हैं वो अक्सर लेड पाइप्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जिसके कारण से हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, उसके अंदर लेड मिल जाता है। और जो प्रिस्क्राइब अपर लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लेड आपके पानी में, वो है 50 पार्ट पर बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। और क्योंकि लेड जो है हमारा, इट कैन डैमेज किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। So there are a lot of harmful effects of lead. So drinking water gets contaminated, contaminated with lead when lead pipes are used for transportation of water। ठीक है। सो मैक्सिमम अपर लिमिट क्या है इसकी, अपर लिमिट इज 50 पार्ट पर बिलियन। और इफेक्ट क्या है इसके, ज्यादा लेने पे इसके किडनी डैमेज, इनकी डैमेज इन किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फेट। तो सल्फेट कितना अलाउड है, तो सल्फेट, एक्सेसिव सल्फेट ग्रेटर देन इक्वल टू 500 ppm in drinking water causes laxative effect, otherwise at moderate level it is harmless। ओके। तो जो हमारा सल्फेट है उसका 500 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा की प्रेजेंस होना पानी के अंदर हमें लेक्सेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है अपने पे। और उससे कम में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर वो हिसाब से है, मतलब लिमिट में है अपनी। नेक्स्ट इज नाइट्रेट। तो जो मैक्सिमम लिमिट है जो नाइट्रेट की, वो हमारी लिमिट है 50 ppm। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो कॉज क्या होगा इसका, मैथामग्लोबियन, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन के हमने कॉजेज देख लिए। ठीक है। और हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर कितना परमिसिबल है कौन सा, वो सब भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल pollution, and mainly we are going to study about sources, sources of
सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है इंसेक्टिसाइड्स। तो जो इंसेक्टिसाइड्स है हमारे मोस्ट कॉमन इंसेक्टिसाइड्स कौन से हैं? कार्बन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक डीडीटी, बीएचसी एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, और जब इनको इस्तेमाल किया जाता है दिस स्टे ऑन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम, ये सॉइल के ऊपर ही बने रहते हैं, और वो जो है उन्हें सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप्स होते हैं, उनके रूट रूट क्रॉप्स होते हैं जैसे कि रेडिश, कैरेट, ये सब डैमेज हो जाते हैं हमारे। ठीक है, इन पे इफेक्ट पड़ता है, नुकसान करते हैं फिर ये। तो डीडीटी, बीएचसी एक्सेट्रा, दे आर नॉट water soluble and stay on the soil, stay in the soil for long time, और दे आर उसके बाद दे आर absorbed by soil and contaminate root crops like radish, carrot, etc. ठीक है। तो ये तो होगी हमारे इंसेक्टिसाइड्स की बात। नेक्स्ट वी हैव इज हर्बिसाइड्स। तो ये हर्बिसाइड्स क्या है? कंपाउंड्स यूज टू कंट्रोल वीड को कंट्रोल करने के लिए जो खेत में छिड़काव करा जाता है, वो होते हैं हमारे हर्बिसाइड्स। और ये काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, और इसलिए अब इन्हें यूज नहीं किया जाता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट इज फंगी। तो ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, उनको एज अ फंगीसाइड्स यूज किया जाता है, और इट्स डिसोसिएशन इन सॉइल प्रोड्यूसेस मर्करी विच इज हाईली टॉक्सिक फॉर द क्रॉप। ठीक है। तो वी कैन राइट ऑर्गेनो mercury compounds are common fungicides. Its dissociation in soil produces mercury, which is very harmful. तो जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो होते हैं, मोस्टली उनको या तो पानी में डंप कर दिया जाता है या मिट्टी में डंप कर लिया जाता है। और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इनके अंदर केमिकल कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है, और मेजरली दे कंटेन नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जांपल मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग, सीमेंट, ग्लास इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो ये सब के सब जो वेस्ट डिस्पोज करते हैं पानी में और मिट्टी में, ये सारा का सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और इसका अगर सुटेबल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो दे इट कैन बी वेरी फैटल। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो ये तो होती है हमारी बात सॉइल सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो अब तक हमने वो सारी चीजें देखी कि एनवायरमेंट में हमारे इफेक्ट किस किस के कारण पड़ रहा है, बट उन सब का क्या? अब हमें ये तो पता लग गया कि किस चीज के कारण इफेक्ट पड़ रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एसिड रेन वगैरह के बारे में जब बात कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए टू कंट्रोल दैट, प्रोटेक्ट दैट मॉन्यूमेंट्स। ओके। और उसके अलावा जो पेट्रोल, डीजल, इनके फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से जो नुकसान हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल, वो सब हमने डिस्कस किया। तो ओवरऑल अब हम एक कंक्लूसिव वे में थोड़ा सा एक बार देखना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या क्या है एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला तो ये है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि जो भी आपका वेस्ट है, जितना भी आपका वेस्ट आ रहा है किसी भी सोर्सेज से,
चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, या फिर किसी भी तरह का वेस्ट हो, तो आप उसको सेपरेट करें। क्या करें? सेपरेट करें वेस्ट को। सेपरेट द वेस्ट। किस 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 में? डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब आप इन दो हिस्सों में अपने वेस्ट को सेपरेट करते हैं, तो उससे काफी फायदा होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? कि भाई जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसको ऐसे ही डंप कर दीजिए मिट्टी में, वो डिकम्पोज हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, जब उन तरह की चीजों को आप जब डंप कर देते हैं वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, तब हमारे को दिक्कत आती है। तब हमारा पॉल्यूशन कॉज होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तब दिक्कत आती है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उसके बाद ही डंप किया जाए। ठीक है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो कहाँ से आ रहा है अपना? जैसे कि जनरेटेड बाय कॉटन मिल्स, कॉटन मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पेपर मिल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके। तो ये सब हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, इनमें से आता है। और इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? लैंडफिल्स, डिपोजिट इन लैंडफिल्स, डिपोजिट इन लैंडफिल्स एंड कन्वर्ट टू कंपोस्ट। मतलब मिट्टी में मिला दो, वो धीरे धीरे अपने डिकम्पोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है हमारा, वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ये कहाँ से आ रहा है अपना? थर्मल पावर प्लांट हो गए। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, आयरन स्टील प्लांट से, आयरन स्टील प्लांट, इनसे जो वेस्ट आ रहा है, ये हमारे लिए दिक्कत वाली चीज है। और इसको हम डंप नहीं कर सकते डायरेक्टली मिट्टी के अंदर, इसलिए इनको रिसाइकिल करना। ठीक है। और इसको अक्सर कंट्रोल्ड वे में जला भी दिया जाता है उससे, जिससे कि नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये तो होगी बात अपनी मैनेजमेंट की, वेस्ट मैनेजमेंट की। तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट, एंड वी आर जस्ट about to talk about the green chemistry. Green chemistry. So, what is green chemistry? Green chemistry is a strategy to design chemical process and products such that उनसे हमारे जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, जो हजार्डियस जो सब्सटेंसेस हैं वो ना आए। ठीक है। तो इतनी सी बात है कि जो ग्रीन केमिस्ट्री इज स्ट्रैटेजी, इज स्ट्रैटेजी टू डिजाइन, अपने केमिकल प्रोसेसेस को ऐसे डिजाइन करो कि जो आपका हजार्डियस वेस्ट है, वो या तो एलिमिनेट ही हो जाए, या कम से कम आए। प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट reduces or eliminate the use and generation of hazardous substance। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाए यूजफुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीडियम। The chemical reactions will be such that the reactants are fully converted into useful environmental friendly products by using an environmental friendly medium, so that there would be no chemical pollutants।
केमिकल पॉल्यूटेंट्स। तो कुल मिला के ग्रीन केमिस्ट्री का तो क्या चीज है कि भाई जो भी आप करो, जितने भी केमिकल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कुछ भी कर रहे हो, तो मेथड्स आपके आपकी चीजें जो यूज कर रहे हो वैसी होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। आपको जो वेस्ट भी निकल के आ रहा है वो भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए। कुल मिला के कंक्लूजन इस बात का यही है। तो ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो जैसे कि जो अपनी ड्राई क्लीनिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग जो होती है वो अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होने लगी है। पहले क्लोरीन से होती थी, तो क्लोरीन से नुकसान करता था। अब उससे होने लगी है H2O2 से। क्लोथ इज डन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू रिप्लेस क्लोरीन। और ब्लीचिंग ऑफ पेपर इज नाउ डन बाय सेम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स लाइक इथेनॉल, इथेनॉल is done with one step oxidation process। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने ग्रीन केमिकल को अपनाया। हमने नॉर्मल मेथड्स जो पहले यूज किए जाते थे उनको एलिमिनेट करके ऐसे मेथड्स को अपनाया दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो यही हमारा मेन गोल है इस चैप्टर को पढ़ने का, यही था हमारा। ठीक है, कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ सकें जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो लेट अस क्विकली सम अप कि पूरे हमने इस 4 लेक्चर की सीरीज में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा। So we began with the definition of pollutants and we discussed that there are two types of pollutants that are degradable and non-degradable. So we begin with pollutants and classified them as degradable and non-degradable. ओके, उसके बाद फिर हमने बात की कि किस प्रकार ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स के कारण होता है और पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के कारण होता है। फिर हमने अपना गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स को ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन को स्टडी किया। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या क्या थे, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स और थे पर्टिकुलेट। और गैसियस में अपने पास कौन कौन थे, ऑक्साइड्स थे, किस किस के, सल्फर के ऑक्साइड्स थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे, कार्बन के ऑक्साइड्स थे। तो इस तरीके से हमने अपने डिस्कस किए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। और कार्बन के ऑक्साइड पे तो हमने ज्यादा डिटेल में मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण से काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बना के हमारे ऑर्गन्स तक को डैमेज करता है। तो फिर हमने ये सब देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, इस सब में रोल प्ले करता है। ठीक है, देन वी मूव्ड टू एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में बात की कि एसिड रेन होती कैसे है, कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। कि जो हमारा पानी होता है उसका नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए, 5.6, उसके आसपास होना चाहिए। बट जब आपका 5.6 के बिलो चला जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और उसके बाद फिर मूव टू पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स डिस्कस करने के बाद वी डिस्कस सम स्मोग and classified it as classical smog, photochemical smog,
और उसके बाद फिर हार्मफुल इफेक्ट डिस्कस किए फोटोकेमिकल स्मोक के, जैसे कि कफ, ब्रोंकियाइटिस, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमने फोटोकेमिकल स्मोक के देखे। ठीक है। सो उसके बाद ये सब करने के बाद वी मूव्ड टू स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ा सा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, उसके बारे में हमने बात की। उसके अंदर मेनली हमने ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से ओजोन फॉर्म होती है, ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है, और इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन क्या क्या है। तो जो ओजोन के फॉर्म होने में यूवी का बहुत, यूवी रेडिएशन जो है उनका बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो O2 मॉलिक्यूल्स फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक, फ्री ऑक्सीजन में ब्रेक होकर दूसरे O2 के साथ कंबाइन करके O3 बना लेते हैं, और ये फिर O3 काफी अनस्टेबल है, ये वापस टूट जाता है। तो एक तरह से चेन रिएक्शन चलती रहती है। बट जब हम पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं, अपना CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये जब हवा में पहुंचती हैं हमारी, ये क्लोरीन के कंपाउंड्स बनाती हैं, और जिसके टूटने पर वापस हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ओजोन बन ही नहीं पाता है। तो इस तरह से ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होने लगती है, जिसके चलते काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हमें, लाइक कैंसर, सनबर्न, कैटरैक्ट, तो इस तरह के काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और लास्टली टुडे हम, व्हाट वी सॉ टुडे वाज अबाउट पॉल्यूशंस इन वाटर, सॉइल, and how we can, what are the strategies we can, what are the steps we can take to control all such type of pollutants। मेजरली बात क्या है कि आप अपने वेस्ट को मैनेज करें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में, और उसको सुटेबल तरीके से डिकम्पोज किया जाए। और लास्टली हमने ये देखा कि किस प्रकार ग्रीन ग्रीन केमिस्ट्री को हमें अपनाना चाहिए, और हर वो चीज जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियल हो या जो भी चीज हो रही है, उसको उस तरीके में चेंज किया जाए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। मतलब आप जो भी कर रहे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट का होना ही हमारा होना है। अगर वो नहीं, अगर हेल्दी होगा तो हमारा भी हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और इसी के साथ यहाँ पे यूनिट समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।